Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history. This is chapter 2, but according to your new syllabus, this is chapter 1, writing and city life. Writing and city life. If you have watched my previous video, I was discuss the introduction of this chapter, this topic, writing and the city life. I also discuss the meaning of Mesopotamia, the importance of Mesopotamia, and the specific feature of Mesopotamia. Language is also discussed by me, development of the language in this area. This was also discussed by me in the previous class, in my previous video. Dear student, in my last class, I clearly explained that we are going to read about one of the richest and oldest civilization throughout whole world, writing in the city. Mesopotamia, that is the oldest civilization. In the Mesopotamia, first time what we observe, what we see, the city life, that is their specific feature. City life began in Mesopotamia, the land between the Euphrates and Tigris river that is now part of the Republic of Iraq. Mesopotamian civilization is known for its prosperity, city life, its voluminous and rich literature, and its mathematics and astronomy. Mesopotamia's writing system and literature spread to the eastern Mediterranean, northern Syria, and Turkey after 2000 BC, so that the kingdoms of that entire region were writing to one another and to the Pharaoh of Egypt. In the language and script of Mesopotamia, here we shall explore the connection between city life and writing, and then look at the sum outcome of the sustained tradition of writing. Dear student, I hope you have remembered what was discussed by me about this paragraph. I was clearly discussed that the Egyptian pharaoh also negotiated with the specific language, the Mesopotamian language. He used Mesopotamian language in the normal conversation. And the Mesopotamian writing system, it was widely spread. Eastern Mediterranean regions, northern Syria and Turkey, and then after far away, entire region were writing one another. Point is very important that the other rulers, they were also interacting with this language, this writing skills. Here we shall explore the connection between the city life and the writing, and then look at some outcomes of the sustained Mediterranean writing. And one more thing which is very important, which I want to discuss with you, that the meaning of Mesopotamia, Mesos and Potamus, there are two words. The Greek word Mesos and Potamia is derived from the Greek words Mesos meaning middle and Potamus meaning river. It is very clear that two rivers, Euphrates and Tigris, okay, Euphrates and Tigris, and the Mesopotamia word Mesos and Potamus. Mesos means middle, Potamus means rivers. Two rivers, the Euphrates and Tigris, दो नदियों के बीच का क्षेत्र मेसोपोटामिया. तो
इन चीज़ों के बारे में हमने आपसे ये चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं. In the beginning of recorded history, the land, mainly the urbanized south was called Sumer and Akkad. After 200 BC, when the Babylon became an Akkad, after 2000 BC, when the Babylon became an important city, the term Babylonia was used for the southern region. That is the very informative information which is given here. In the beginning of the recorded history, the land, mainly the urbanized south, was called Sumer and Akkad. After 200 BC, when Babylon became an important city, the term Babylonia was used for the southern region. From above 1100 BC, when the Assyrian established their kingdom in the northern, the region became known as Assyria. The first known language of the land is Sumerian. It was gradually replaced by Akkadians around 2400 BC. When Akkadian speakers arrived, the language flourished still about the Alexander's time 336 to 323 BC, with some regional changes occurring from 1400 BC. The Aramaic also trickled in this language, similar to Hebrew, became widely spoken after 2000 BC. It is still spoken in the part of Iraq. This paragraph also discussed by me in my previous video. इस पैराग्राफ को भी मैंने पुरानी वीडियो में आपसे बात करके बोला था, डिस्कस किया था. मैंने आपसे कहा था, इन द फर्स्ट टाइम द अर्बन कल्चर वाज soon, urban culture was developed in the southern part of Mesopotamia. Southern part of Mesopotamia called Sumer and Akkad. There were two cities, Sumer and Akkad. The southern part of Mesopotamia, after 200 BC, Babylon became the prominent city of this civilization in the southern part. So in the southern part it's called Babylon. And contemporary, in the southern regions, Assyrians, they were established a proper kingdom in the northern part of Mesopotamia, northern region. So that's why the northern region is called Assyria. Southern region is called Babylonia. Northern region is called Assyria. The first known language, that was Assyrian language. Assyrian language was replaced by Akkadian language. Okay? Assyrian language, gradually it was replaced by Akkadian around 2400 BC, when Akkadian speakers arrived. This language flourished till about Alexander's time. Akkadian language flourished ड्यूरिंग अलेक्जेंडर टाइम, जब भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था. सिकंदर के आक्रमण के समय तक अक्कादियन भाषा में लोग बातचीत करते थे. 336 to 323 BC. With some regional changes occurring from 1400 BC, Aramaic also trickled in this language. फिर बाद में 1400 BC तक आते आते इस क्षेत्र में अरामीक का प्रवेश हुआ, और अरामीक के बाद जो अरामीक भाषा थी वो हिब्रू से काफ़ी मिलती जुलती थी, और हिब्रू आज भी इराक के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में बोली जाती है. एक भाषा के क्रम का विकास था. इन चीज़ों के बारे में हमने अपनी पुरानी क्लास में चर्चा की थी. लास्ट क्लास आई वॉज प्रॉमिस यू दैट आई विल टेल यू द स्टोरी. मेसोपोटामिया के उत्खनन के बाद, मेसोपोटामिया का जब
एक्सकवेशन हुआ तो एक्सकवेशन के बाद कौन कौन से शहर आए प्रकाश में, और लोगों ने क्या सोचा, ओल्ड टेस्टामेंट से इसका क्या रिलेशन था, इन चीज़ों पे कहते हैं आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगेन इन द 1840 at one or two sites including Uruk and Mari, which we discussed below. Excavation continued for decades. No Indian site has ever seen such long-term project. Not only can we study hundred of Mesopotamian buildings, statue, ornament, graves, tools and seals as source. There are thousands of written documents. कहता है कि मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की जो शुरुआत 1840 के डिकेड्स में शुरू हुई, वहाँ एक दो स्थल पर जैसे उरुक और मारी में, जिन पर आगे हम डिस्कस करेंगे, ये उत्खनन का कार्य, एक्सकवेशन का कार्य कई डिकेड्स तक होता रहा, कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर, किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे इस तरह के एक्सकवेशन हमें दिखाई नहीं देते। भारत की किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे इतने लंबे अरसे तक एक्सकवेशन का कार्य का कोई प्रोजेक्ट नहीं चला। इन खुदाइयों के फलस्वरूप, इन एक्सकवेशन के फलस्वरूप इनके रिजल्ट क्या है? इनके रिजल्ट के फलस्वरूप इतिहास के एविडेंस के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्र, औजार और समुद्र के और मुद्राओं की ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हमें प्राप्त हुए एक्सकवेशन में। हम उनके अध्ययन के आधार पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते, समझ सकते। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के डिकेड्स में हुई। वहाँ एक या दो स्थलों पर जैसे उरुक या मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन का कार्य चला। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि से है। सिमार जो बाइबल में एक्सप्लेन किया गया है, सिमार जिसका उल्लेख हुआ है बाइबल में, सिमार को कहते हैं कि ये सुमेर है, ईंटों से बना हुआ है। एक महत्वपूर्ण घटना थी। बुक ऑफ जेनेसिस की जो बातें थी, अब ऐसा लगता था क्रिश्चियन को कि उनका ये शहर जो ईंटों का बना हुआ है, उत्खनन में ये वही शहर है जिसके बारे में बाइबल में कहा गया है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक है जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य है सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि से। यूरोप के यात्री और इंटेलेक्चुअल लोग, विद्वान लोग मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में खूब सारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुए, एक्सप्लोरेशन हुए, तो ओल्ड टेस्टामेंट्स के अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया गया। ये प्रूफ करने का प्रयास किया कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया वो सही है, और ये एक्सकवेशन उससे डायरेक्ट रिलेट करता है। 19वीं सेंचुरी के आसपास मेसोपोटामिया के अतीत की खोज हो जाने के बाद थोड़ी उत्साह में लोगों की कमी आई। 19वीं सेंचुरी में लोगों के उत्साह में थोड़ी सी कमी आई। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने ढूंढा था, जो उन्होंने खोजा था, वो चीज़ें मेसोपोटामिया से रिलेट नहीं कर पा रहे थे। सन 1873 में एक ब्रिटिश मैगजीन में ये बात छपी, ब्रिटिश समाचार पत्र पे ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा ये बात कही गई कि क्या, देखिए कहता है मेसोपोटामिया वॉज द इम्पॉर्टेंट टू यूरोपियंस बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टू इट इन द ओल्ड टेस्टामेंट।
The first part of the Bible, for instance, the book of Genesis of the Old Testament, refers to Simar, meaning Sumer, as a old of built bricks built cities. Travelers and scholars for Europe looked on Mesopotamia as a kind of ancestral land. And when archaeological work began in the area, there was an attempt to prove the literal truth of the Old Testament. ओल्ड टेस्टामेंट में जो लिटल ट्रूथ बात कही गई थी उसको प्रूव करने का प्रयास किया गया इन एक्सक्वेशन के आधार पर. कहता है फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी देयर वॉज नो stopping the enthusiasm for exploring the ancient past in Mesopotamia. In 1873, a British newspaper funded an expedition of the British Museum to search for a table narrating the story of flood mentioned in Bible. By the 1960s, it was understood that the stories of the Old Testament were not literally true, but may have been ways of the expressing the memories about important changes in history. Gradually, archaeological techniques became far more sophisticated and refined. When it more attention was directed to different questions, including reconstructing the lives of ordinary people, establishing the literal truth of the Bible. Narratives receded into the background. Much of what was discussed subsequently in the chapter is based on these later studies. माय डियर, एकदम क्लियर कह रहा है कि एक 19th सेंचुरी के शुरुआत जो दशक थे, डिकेट्स थे, उसमें लोगों के उत्साह में थोड़ी कमी आई, क्योंकि जो प्रारंभ में खोज हुए थे, अभियान हुए थे, उसके खर्च के लिए ब्रिटिश म्यूजियम ने खूब पैसा खर्च किया था. ब्रिटिश म्यूजियम ने एक्सप्लोरेशन के लिए, एक्सकवेशन के लिए मेसोपोटामिया में एक ऐसे टेबलेट की खोज करने के लिए जिसमें बाइबल की उल्लिखित फ्लड की कहानी मेंशन हो, खूब डोनेशन दिया, खूब ऐड दिए. 1960 के डिकेट्स तक ये समझा जाने लगा कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो कहानियाँ हैं वो पूरी तरीके से अक्षरशः सत्य नहीं, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से व्यक्त करती है. धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकी अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई. इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन को भी अब इतिहास के अंग के रूप में एक्सेप्ट किया गया, बनाया गया, उसके बारे में भी लोग परिकल्पना की जाने लगी. बाइबल की कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौड़ हो गया. आगे के भाग में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांशतः हमको लेटर फेजेस के मेसोपोटामियन रीजन्स के होंगे. हमने आपके सामने एक मैप दिखाया है मेसोपोटामिया की. देखिए इसमें कई सारे हैं. देखिए ब्लैक सी, कैस्पियन सी के नीचे टर्की, सीरिया, लेबनान, यूफ्रेट्स, टिग्रिस के बीच का रीजन, बेबीलोन, उरुक, ईरान, ये पूरा इलाका मेसोपोटामिया रीजन का था. One more thing which I want to discuss with you, the story which is given in Bible. बाइबल में क्या दिया हुआ है? According to the Bible, the flood was meant to destroy all life on earth. However, God chose a man, Noah, to ensure that life could continue after the flood. Noah built a huge boat, an ark. He took a pair each of all known species of the animals and birds on board the ark which survived the flood. There was a strikingly similar
story in the Mesopotamia traditions, where the principal character was called the Jew Sudra और उतना पिस्टिन, जीव शूद्र और उतना पिस्टिन। कह रहा है बाइबल के अनुसार जो ये फ्लड की कहानी है, जल प्लावन की कहानी है, पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोहा नाम से एक मनुष्य को चुना। नोहा एक विशाल नाव बनाई और उसके सभी जीव जंतुओं को उस नाव में रखा, एक एक पेड़ को। और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्यों में भी हमें मिलती है। इस कहानी का मुख्य पात्र जीवशूद्र है, जिसको उतानपिष्टिन भी हम कहते हैं। और ऐसी ही कहानी भारतीय ब्राह्मण साहित्यों में मिलती है, संहिताओं में मिलती है। सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा आती है, फ्लड की कथा आती है। सतपथ ब्राह्मण में मनु और शत्रुपा नामक दो व्यक्ति को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने एक बड़े जहाज में सबको रखने को और उन्हें इस प्रलय काल में किनारे ले जाने का काम किया था। इसका उल्लेख भी हमें पुराणों में मिलता है और इसका उल्लेख हमें सतपथ ब्राह्मण में भी प्राप्त होता है। तो ये कहानी जल प्लावन की लगभग हर जगह से हमें दिखाई देती है, थोड़े बहुत बदलावों के साथ, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये बाइबल की कहानी थी। अंग्रेज़ों ने इसी के आधार पे खूब ऐड दिए मेसोपोटामिया के एक्सकवेशन में। वो ऐड मेसोपोटामिया के एक्सकवेशन के बहुत काम आया और मेसोपोटामियन कल्चर को समझने के लिए एक्सकवेशन ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। बहुत सारे हमें सोर्स मिले जिसके आधार पर हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को समझा। ऑर्नामेंट्स मिले, लिटरेचर मिला, टेबलेट्स मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले, और ये सारी चीज़ें हमें मेसोपोटामिया के इतिहास को भली भांति समझाती हैं, बताती हैं। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। अब आते हैं टॉपिक फर्स्ट पे, मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। This is map of Mesopotamian civilization. If you will see this map, you can easily understand that some part of the Egypt, it means Africa, Arabian Peninsula whole, and एशिया, सेंट्रल एशिया का कुछ एरिया भी आपको इसमें मिलेगा। एक बड़े एरिया पे मेसोपोटामिया का विस्तार दिखाई दे रहा है। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरल सी, पर्सियन गल्फ, अरेबियन सी, रेड सी और मेडिटेरियन सी। करीब करीब 6 जो ओशंस हैं, ओशन नहीं बल्कि सी कहा जाता है बेटा, जो 6 सी हैं, इनसे समृद्ध यह प्रदेश अपने भौगोलिक विशेषताओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जोग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं, मेसोपोटामिया एंड इट्स जोग्राफी। इन इस टॉपिक वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ डेमोग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द जोग्राफिकल कंडीशन, लैंड मॉर्फोलॉजी of particular that whole area. Iraq is a land of diverse environmental. Diverse environments, this word clearly explains that there are so many diversity in Mesopotamia. In the northeast lie green, undulating plains, gradually
rising to tree-covered mountain range with clear streams and wild flora with enough rainfall to grow crop. So what we observe having seen this, having read this line, we can easily understand that in the northeast lie green, undulating plains, gradually rising to tree-covered mountains range with clear streams and wild flowers with enough rainfall to grow crops. Here agriculture began to between 7000 and 6000 BC. In the north, there is a stretch of the uploaded called steppes, where animals herding offer people a better livelihood than agriculture after the winter. Rain, sheep, and goat fill one the grass and low shrubs that grow here. To the east, tributaries of the Tigris provide routes of communication into mountains of Iran. The south is a desert, and this is where the first cities and the writing emerged. This desert could support cities because the river Euphrates and Tigris, which rise in the northern mountains, carry loads of silt. When they flood or when their water is laid out on the fields, the fertile steel is deposited. Having seen this map, you can easily understand that the river, the steppe is Pradesh, steppe is region, Mari, Asur, Nimrud, Nineveh, Assyria, Baghdad, and Tel Abu, Salman Beg, Babylon, Uruk, Ur. Each city also explained in this map. Zone of the agriculture productivity, which is indicated by the green color. The southern limits of the zone of the rain-fed agriculture, red, and mountains range by triangles. आप देखिए पूरा का पूरा माउंटेन, आप देखिए जितने भी ट्रायंगल्स दिख रहे हैं वो माउंटेन्स। जो ग्रेन एरिया है वो काफ़ी कम है, उरुक और उर ग्रेनरी लैंड में है। कह रहे आफ्टर द यूफ्रेटस हैज entered the desert, it is water flow out into small channels. These channels flood their bank and in the past they functioned as a irrigation canals. Water could be let into their fields of the wheat, barley, peas or lentils when necessary. Of all ancient systems that of the Roman Empire include, it was the agriculture of the southern Mesopotamia that was the most productive, even though the region did not have sufficient rainfall to grow crops. Not only agriculture, Mesopotamia's sheep and goats grazed on the steppes, the northern eastern plains, and the mountains slope. That is on track to high for the river to flood and fertiles, produce meat, milk, and wool in abundance from the ships. Further, fish was available in river and date palm gave fruits in summer. Let us not, however, make the mistakes of thinking that cities grew simply because of rural prosperity. We shall discuss other factors by and by. But first, let us be clear about the city life. My dear, on the basis of that, you can easily understand the geographical condition of the Mesopotamia. पूरा क्लियर करता है, कहता है कि मेसोपोटामिया उसका जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, कहता है इराक की भौगोलिक विविधता का देश है। इराक एक ऐसा देश है जहाँ पे डाइवर्स इन्वायरमेंट है। इसके नॉर्थ ईस्ट हरे भरे हैं, ऊंचे नीचे मैदान हैं
जो जहाँ धीरे धीरे वृक्षाधार जो वृक्षों से भरे हुए हैं, वृक्ष से कवर पूरे माउंटेन रेंज आपको मिलेंगे। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल भी हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 BC के बीच खेती शुरू हुई थी। उत्तर में नॉर्थ रीजन में ऊंची भूमि है। यहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं और यहाँ पे पशुपालन की खेती की तुलना में जो पास्टलिस्ट इंडस्ट्री हो ज़्यादा डेवलप है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ, यहाँ होने वाली छोटी छोटी झाड़ियाँ और घास से अपना भरण पोषण करते हैं। ऑब्वियसली पास्टलिस्ट इंडस्ट्री है, स्टेपीज रीजन है, घास अच्छे है, तो वहाँ पे जानवरों के पशुपालन उद्योग काफ़ी विकसित अवस्था में होगी। तो ये जो स्टेपीज रीजन है, यहाँ पे पास्टलिस्ट इंडस्ट्री खूब डेवलप हुई। दजला यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर का जो एरिया है वो मैदानी एरिया है। यहाँ पे टिग्रिस काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैनाल से अवेलेबल कराती है। जो रिवर है, स्पेशली जो दजला है, दजला और फरात दो नदियाँ जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, मैंने कहा था कि यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस दो नदियाँ हैं। जो टिग्रिस है, इसकी सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी रीजन के अंदर तक प्रवेश की हैं और एक अच्छा मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। साउदर्न पार्ट में एक रेगिस्तान है, डिजर्टेड एरिया है। यही वो स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। डिजर्टेड एरिया में सबसे पहले राइटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट, और शहर बसे। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण के साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज थी, जो पहाड़ों से निकलकर इन रीजन्स में आती थी, काफ़ी अधिक मात्रा में फर्टाइल जो सिल्ट लेके आती थी। नदियों में बाढ़ आती थी अथवा जब उनके पानी सिंचाई के लिए खेतों में लाए जाते थे तो यहाँ उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। जो यूफ्रेट्स थी, नदियों में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बहने लगती थी। कभी कभी इनकी जो स्ट्रीम्स थी उसमें बाढ़ आ जाती और पुराने ज़माने की जो स्ट्रीम्स थी, जो सिंचाई की नहरों का काम वो देने लगती थी। और आवश्यकता पड़ने पर ये लोग वहाँ पे गेहूँ, जौ, मटर, मंसूर की खेती भी खूब करते थे। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी अवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। ये जो प्लेस था, एग्रीकल्चर लैंड जो था, जो यूफ्रेट और टिग्रिस की ट्रिब्यूटरीज से डेवलप होती, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड थी एक पूरे एरिया में। खेती के अलावा यहाँ पे पास्टलिस्ट इंडस्ट्री भी डेवलप हुई, पास्टोरलिज्म भी डेवलप हुआ। भेड़ बकरियाँ स्टेपीज घास के मैदानों में खूब ज़्यादा अधिक मात्रा में ये फ्लोरिश की। नॉर्थ ईस्ट एरिया में मैदानी रीजन्स, पहाड़ों के ढालों में ये खूब भेड़ बकरियाँ पाली जाती थी। इनका प्रयोग मांस के लिए, दूध के लिए, ऊन के लिए किया जाता था। इसके अलावा नदियों से मछलियाँ भी खूब मिलती थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ से खजूर की प्राप्ति, ये सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिल रही थी। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर हुआ, रूरल प्रॉस्पेरिटी के आधार पर हुआ। इसका विकास के और भी बहुत सारे कारण थे जिनको हम बारी बारी आई मीन टू से दैट कि धीरे धीरे वी शैल डिस्कस अदर फैक्टर्स बाई एंड बाई, बट फर्स्ट लेट अस बी क्लियर अबाउट द सिटी लाइफ। लेकिन हमें सबसे पहले किसे जानना है? हमें शहरों के जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी का पता कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका नेक्स्ट टॉपिक है द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। गुड बाय।